Hello everyone, today we are going to read the chapter English, chapter first of English Yuvak Bharati, the subject compulsory English for the standard 12th board that I am going to give. I am going to give Maharashtra State Bureau of Textbook Production. Okay, so that's okay, huh? It's okay. So the first chapter is, let me see it. Yeah. So the first chapter is An Astrologer's Day. Okay, section 1 by R.K. Narayan. Okay, see, section 1 An Astrologer's Day. So these are all activities. I'll just start the reading of lesson. R.K. Narayan, Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy is one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories, and number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He also has written his memoir My Days. Narayan has created the imaginary town of Malgudi, where realistic characteristic in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrate the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by simple style and subtle spirit. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. This includes Swamy and the Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, An Astrologer's Day, and other stories. Mr. Sampath, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide, and many other books. His novel The Guide won him the Sahitya Akademi Award in 1961, the most coveted literary honor in India. His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and the paradoxes of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, elegance, and simplicity. An Astrologer's Day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wore a saffron colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way: medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth, who created enough din all day to attract the whole town. Next to him, in vociferousness, came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights,
One or two had hissing gas lights, some had naked flares such stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening on his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn? Where he is, you have an impetuous nature and a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately. For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphern, paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you it it will do you it will do you good to sit down." एक minute. You look so careworn. It will do. It will do you. It will do you good to sit down for a while and chat with me. The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under the nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." Our friend felt piqued. "I charge only 3 pies per question, and what you get ought to be good enough for your money." At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return the anna to me with interest. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? No. Or will you give me 8 annas? All right, provided uh, you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. This pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. The astrologer caught a glimpse of his face by matchlight. There was a pause as cars hooted on the road.
Jutka drivers swore at their horses, and the babble of crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. Leave me today. I will speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, Challenge is challenge. Go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. Stop, said the other. I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go. Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. The astrologer muttered a few incantations and replied, All right, I will speak. But will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth, and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, You were left for dead, am I right? Ah, tell me more. A knife had passed through you once, said the astrologer. Good fellow, he bared his chest to show the scar. What else? And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. Guru Nayak, you know my name. The other said, taken aback. As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will live to be 100. Why should I live home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night. After giving the astrologer a handful of coins, it was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, Count them. One man gave all that. 12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? Nothing. After dinner, sitting on Pule, he told her, Do you know a great load is gone from me today? I thought I had the blood of a man on my hands on all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here, and married you. He is alive. She gasped. You tried to kill him? Yes, in our village, when I was a silly youngster, we drank, gambled, and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning, and stretched himself on Pure. Okay. So it was like astrologer म्हणजे की हे सांगतं की काय होणार वगैरे like that. So just let me
बाहर the story. Just let me see. It's about astrologist. Astrologist. हेलो एवरीवन। सो यार आई एम अगेन। 1 घंटे बाद फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। जैसे कि मैंने बोली थी कि हम क्या पढ़ रहे थे, आपके इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। नोटिफिकेशन आ चुका होगा आप लोगों को भी। सो एस्ट्रोलॉजर्स डे का हमने 4 बजे समरी पढ़े, ठीक है। पूरा डिटेल में हमने जान लिए कि भाई वो चैप्टर में क्या है, क्या स्टोरी है, उस चैप्टर से हमको क्या मॉरल मिलता है, और सब कुछ हमने देख लिए। अभी हम अपने वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर्स डे हमारा कंप्लीट होने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। 1 सेकेंड, बहुत सारे बच्चे इधर पे आ गए हैं, क्या बात है, ग्रेट एवरीवन, वाओ, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर हियर, ग्रेट। सो उनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारास्वामी। कृष्णस्वामी अय्यर नारास्वामी इनका पूरा नाम है। वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट, इंडिया के बहुत ही जाने पहचाने नॉवेलिस्ट है। नॉवेलिस्ट मतलब जो लोग नॉवल लिखते हैं, ठीक है, स्पेशली इंग्लिश में, है ना। सब राइटर लोग की अलग अलग होती है, कोई हिंदी में लिखते हैं, कोई मराठी में, कोई इंग्लिश में। तो R.K. नारायण इंग्लिश में सारी चीजें लिखते थे। ही इज द का दिन, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर का दिन। शुरुआत होती है पहली लाइन से, क्या, पंचुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताई थी 4 बजे रिलेट करना आप लोग, मैंने समरी में आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ। अब वही चीज को हम देखेंगे डिटेल में और हर एक हार्ड वर्ड का मीनिंग जानेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में हार्ड वर्ड भी पूछा जाता है, ये याद रखना, 1-1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मिड डे मतलब क्या, मिड डे मतलब दोपहर में, हमेशा की तरह, पंचुअली मतलब एकदम टाइम पे, है ना, एकदम टाइम पे। अगर दोपहर 2 बजे वो जाता है तो बराबर दोपहर 2 बजे ही टच हो जाएगा। पंचुअली दोपहर में क्या करता है, वो पहुंच जाता है अपनी जगह पे। क्या करता है, अपना बैग खोलता है, जो उसने अपना सामान लाया था, उसमें सामान मैंने क्या बोली थी, इक्विपमेंट्स, वो निकालने लगता है। और वो सामान में क्या क्या चीजें होती है, 4 चीज होती है, हमने पढ़े थे। एक ज्योतिषी का दिन, यस। क्या होता है, उस सामान में 4 चीजें होती है। पहला तो होते हैं काउरी शेल्स। काउरी शेल्स ऐसे दिखते हैं, ये देखो, ये काउरी शेल्स है, ठीक है, ये सब काउरी शेल्स है। डोजन मतलब, डोजन तो मालूम है ना, 1 दर्जन अंडा लेके आओ बेटा, तो 12 अंडे होते हैं, ठीक है। सो 12 डोजन्स ऑफ काउरी शेल, 12-15 उनके पास क्या थे, काउरी शेल्स थे। स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट। और दूसरी चीज क्या, चार्ट, देखो ये अभी क्या है, मिस्टिक चार्ट है। मतलब ये देख के अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा एक नॉर्मल इंसान को कि ये चार्ट अपने को क्या बताना चाह रहा है, पर कुछ तो इसमें छुपा हुआ है जो ज्योतिषी लोग ही देख के पहचानेंगे कि अच्छा तुम्हारी बर्थडे इधर पे आता है, मतलब तुम्हारा इससे कुछ कनेक्शन है, ऐसा ऐसा लोग मतलब करते हैं। तो वो चार्ट को क्या बोलते हैं, मिस्टिक चार्ट, मिस्टिक चार्ट। और ये चार्ट कैसा होता है, ऑब्सक्योर होता है, यानी लेमैन, एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन इंसान इसको देख के समझ नहीं पाएगा कि ये क्या लिखा है ना, क्या मतलब पहचान नहीं पाएगा, बस अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और तीसरी चीज क्या थी उसके पास, नोटबुक था। पहला काउरी शेल्स, दूसरा एक मिस्टिक चार्ट, और तीसरा नोटबुक, और चौथा क्या है, चौथा है
पालमायरा राइटिंग। पालमायरा राइटिंग क्या होता है, यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी इधर पे, ये देखो, ये दिख रही है, इसको बोलते हैं पालमायरा राइटिंग। अब बोलोगे ये क्या है, तो ये देखो, ये ट्री दिख रहा है आपको, ये पाम ट्री है, ठीक है, इसको पाम ट्री बोला जाता है। ओके, अब ये जो इसकी जो ब्रांचेस होती है, इसके जो भी टहनियाँ होती है, इसको सुखा दिया जाता है, ठीक है। ये पाम ट्री की ब्रांचेस को, टहनियाँ को सुखा देते हैं और फिर उसके ऊपर जो कुछ भी लिखते हैं ना, जो कुछ भी लिखते हैं वो हमेशा के लिए परमानेंटली हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना पत्थर की लकीर, पत्थर में आप कुछ लिख दोगे तो उसको फिर मिटा नहीं सकते। पेपर में लिख के पेपर को फाड़ दोगे, पेपर में मिटा दोगे, रबर से मिटा दोगे, कुछ भी कर दोगे, वो गायब हो जाए। लेकिन जो चीज़ पत्थर में लिख दिए तो पत्थर को तो फिर तोड़ना पड़ेगा, वो तो करेगा नहीं कोई, उसको मिटा नहीं सकते रबर से। तो उसी तरह होता है क्या, ये पालमायरा ट्री का ब्रांच को सुखा के उसके ऊपर लिखते हैं ताकि जो भी चीज़ उसमें लिखी हुई है वो कभी भी गायब ना हो, कभी लॉस ना हो, पानी गिरे या कुछ भी हो। समझ गए बात? एक सेकेंड था, हाँ। देन हिज फोरहेड, 4 चीज थी इसके पास, काउरी शेल्स था, मिस्टिक चार्ट था, नोटबुक था और पालमायरा ट्री का ये था अपना राइटिंग था, उसमें वो लिखा हुआ था। 3 सेशन ली हूँ बैक टू बैक, तो इसलिए मेरी थोड़ी जबान फिसल रही है, सॉरी। हिज फॉरहेड वॉज रेस्प्लिडेंट, फॉरहेड मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा सर का। रेस्प्लिडेंट का मतलब क्या होता है, पवित्र, ठीक है। उसके सर पे, उसके फॉरहेड पे क्या लगा हुआ है, पवित्र राख लगी हुई है। सेक्रेट ऐश, ऐश मतलब ऐश्वर्या राय, ऐश मतलब क्या बोलते, राख, सॉरी, हाँ राख, मैं भी भूल गई, राख, ठीक है। एंड वर्मिलियन मतलब टीका। फोरहेड पे क्या लगा है, पवित्र राख लगी है और टीका लगा हुआ है, वर्मिलियन। एंड हिज आई स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लिम, और उसकी जो आंखें है, यस राख, और उसकी जो आंखें है एस्ट्रोलॉजर की, वो कैसी है, स्पार्कल्ड हो रही है, यानी बहुत ही ज्यादा चमक रही है, उभर के आ रही है, उसमें से ग्लिम आ रहा है। ग्लिम देखो, ग्लिम, यहाँ पे आपको शिनचैन की फोटो दिख रही है, इसकी आंखें देखो भाई कितनी ज्यादा चमक रही है ना। इसकी आंखों में आंखें कोई देखेगा तो बहुत ही पिघल जाएगा, है ना। ऐसे ही करता था ना, कोई चीज मनवाने के लिए एकदम ऐसा देखने लगते हैं तो कोई अपने को देखेगा और अपनी जो भी बात अपन बोलेगा वो मान जाएगा। तो इसकी आंखें भी कुछ ऐसे ही लग रही है, इसकी एस्ट्रोलॉजर की आंखें बहुत स्पार्कल्ड हो रही है। क्यों इतने स्पार्कल्ड हो रही है भाई इसकी आंखें, बिकॉज विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, क्योंकि भाई उसको कस्टमर को पकड़ना जो है ना, तो अपनी आंखों को एकदम चमचमाहट की तरह बना के रखा है और सब कस्टमर को ऐसा देखते रहता है ताकि कोई भी कस्टमर की नजर ज्योतिषी पे पड़े तो वो उस पर अट्रैक्ट हो जाए और उसके पास आ जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है कस्टमर को सर्च करने के लिए। बट विच ही सिंपल क्लाइंट मतलब वो यहाँ कस्टमर took to be prophetic light and felt comforted, और जो भी कस्टमर उस एस्ट्रोलॉजर को देखता था, गौर से सुनो मेरी बात, सेक्रेट का मतलब भी होता है पवित्र, यस कहाँ गया, प्रोफेटिक लाइट, हाँ। तो जो भी कस्टमर एस्ट्रोलॉजर को देखता था, आप लोग भी क्या करो, अपनी बुक ओपन करो और हार्डवर्ड लिखते जाओ। मैं बता रही हूँ, एक बार का ही काम है, आप ये चीज एक बार कर लोगे ना, आपको कभी फिर से ऐसे 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के लेक्चर नहीं सुनने पड़ेंगे। आप अपनी एक बार बुक लेने का, मैं जो भी लेक्चर ले रही हूँ उसका हार्डवर्ड लिख लो और वो बुक को बार बार फिर बाद में रिवाइज करो जब भी, है ना। आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके पास कुछ होगा नहीं, एग्जाम के 1 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले आप क्या रिवाइज करोगे, फिर से लेक्चर देखोगे, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होगा, राइट। सो उसकी नोट्स बनाते जाओ जल्दी जल्दी। कहाँ गया, हाँ। तो जो भी कस्टमर्स थे एस्ट्रोलॉजर के, वो जब भी एस्ट्रोलॉजर को देखते थे तो मान जाते थे कि हाँ ये ना क्या है, प्रोफेटिक लाइट है। प्रोफेटिक लाइट मतलब कोई भी इंसान पे हम बिलीव करते हैं ना कि हाँ ये ज्योतिषी ही है, रियल वाला ज्योतिषी, प्रोफेटिक, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ पावर है, इसके अंदर कुछ तो है भाई, कुछ तो है, ठीक है। कस्टमर लोग एस्ट्रोलॉजर को देख के ये चीज मान जाते थे कि हाँ ये पक्का एस्ट्रोलॉजर ही है, ये ढोंगी नहीं है। क्यों ऐसा भाई, क्यों ऐसा, आगे देखते हैं हम उसकी अपीयरेंस को देख के, ठीक है। The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheek। हाँ, यहाँ पे बस इतने बोला है कि देखो बहुत लंबा है लेकिन एकदम छोटी सी इसमें बात है कि जो उसकी बड़ी बड़ी जो एक तो आंखें जो चमक रही है, उसने कुछ तो किया होगा, काजल वाजल एकदम अच्छे से लगाया होगा ऐसा नीचे, और
उसकी फोरहेड में उसने, पता है हमने क्या किया, उसने फोरहेड में पूरा राख लगाया है, टीका लगाया है, और उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है, विस्कर है। विस्कर मतलब ये देखो, ये बिल्ली है ना, ये वाला जो हिस्सा है दिख रहा है, ये वाला हिस्से को बोलते हैं विस्कर, ठीक है। बिल्ली की जो यहाँ पे ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं विस्कर। तो उस एस्ट्रोलॉजर की दाढ़ी भी वैसी है, विस्कर की तरह है, मतलब एकदम फैली हुई है, ऐसी फैली हुई है, जो कि क्या हो रही है, एकदम ऐसा लग रहा है बह रही है, बह रही है, स्ट्रीम डाउन हो रही है भाई, बह रही है, ऐसा ऐसा बह रही है। तो मतलब मैं भी ना कभी कभी, समझ गए मेरी बात। और मतलब नॉर्मल इंसान की बात, नॉर्मल इंसान की जो दाढ़ी होती है वैसे स्ट्रेट होती है अगर रखना भी है तो, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम उसने हटके बना के रखा है, तो कोई भी इंसान उसको देखता है तो थोड़ा हटके लगता है ना वो एस्ट्रोलॉजर, तो इसलिए ऐसा होने लगता है। स्ट्रांगली बिलीव एनीवन, यस यस, बोल सकते हैं कि हम किसी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि हाँ ये पक्का तो है, वही है। इवन अ हाफ विट आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग। यहाँ पे क्या बोला है, इवन अ हाफ विट आई, हाफ विट आई, ये फ्रेज को गौर से देखो। हाफ विट आई का मतलब होता है स्टूपिड या इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। इस लाइन में कहा गया है कि आप एक स्टूपिड या इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी आप ऐसा हुलिया बना दोगे ना उसका, कि आप क्या करोगे, उसके सर पे राख लगा दोगे, उसको टीका लगा दोगे, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर दोगे, उसको काजल लगा दोगे, उसको सर पे टोपी पहना, टोपी मतलब पगड़ी, ब्राउन कलर ऑरेंज कलर की पगड़ी पहना दोगे बड़ी सी, और उसको कहीं बिठा दोगे, तो वो भी साधु संत ही दिखेगा ना भाई। तो वही बोल रहा है कि ये तो वही बात हो गई, मतलब एक स्टूपिड इंसान का भी आप हुलिया बदलोगे तो वो तो वही दिखेगा ना, तो वही बताया यहाँ पे। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड, देखो यहाँ पे कहा गया वो इवन हाफ विट आई, यानी स्टूपिड इंसान भी क्या होने लगेगा, स्पार्कल्ड होने लगेगा अगर उसको वैसी सेटिंग में बिठाया गया। कैसी सेटिंग में, जो मैंने आपको बताई ना, एस्ट्रोलॉजर की तरह हुलिया बनाएगा तो एस्ट्रोलॉजर ही दिखेगा ना, और क्या दिखेगा वो, तो वही बोले। टू क्राउन द इफेक्ट ही बाउंड अ सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मतलब ऑरेंज कलर का टर्बन पहना है, पगड़ी पहना है सर पे। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, हाँ बोल सकते, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। और ज्यादातर जो ऑरेंज कलर जो होते हैं, है ना, कोई इंसान ऑरेंज कलर का पूरा ऐसा कुछ पहना है साड़ी, तो उस पर हमारी नजर जाती है कि कोई साधु संत है पक्का, है ना, पगड़ी पहना है, तो ये जो ऑरेंज कलर है वो थोड़ा ये सब चीजों में ही माना जाता है, साधु संत, एस्ट्रोलॉजर, ये लोग ही ऐसे कपड़े पहनते हैं कलर के। पीपल वेर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस। और जो उसके कस्टमर थे वो एस्ट्रोलॉजर पे इस तरह से अट्रैक्ट होते थे जैसा कि एक मधुमक्खियां, जो मधुमक्खियां होती है वो कॉस्मोस, और दलिया फ्लावर का नाम है, ये कहाँ गया, फोटो गायब हो गई। ओके, एक फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर पे कैसे सब मधुमक्खी लोग चिपकी रहती है, तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर पे सब सारे कस्टमर उसके आके लाइन लगाए रहते हैं, मतलब इतना फेमस एस्ट्रोलॉजर होता है ये, ठीक है। He sat under the boughs of a spreading turmeric tree, जैसे मैंने बताई थी ये किधर बैठा होता है, ये एक इमली के झाड़ के नीचे, इमली के झाड़ के नीचे यानी टैमरिन ट्री के नीचे ये बैठा होता है। बाउस मतलब क्या होता है, ये देखो ये ट्री है, कहाँ गया, हाँ ये ट्री है, ठीक है, देखो मैं बनाती हूँ ऐसे, समझो फॉर एग्जाम्पल ऐसा, पहले ये ऐसा होता है, फिर उसकी ब्रांचेस होती है ना, ऐसा ब्रांचेस होती है, तो जो भी ब्रांचेस में सबसे ज्यादा पत्ते होते हैं, ठीक है, वो वाला एरिया हमको ज्यादा शेडो देगा ना। अगर समझो यहाँ पे ब्रांच है और यहाँ पे ज्यादा पत्ते नहीं है तो हमको वो चीज धूप से नहीं बचा पाएगी। तो बाउज उसको बोलते हैं, ट्री का वो वाला एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा पत्ते हैं, जो बहुत ज्यादा पत्ते हैं वो एरिया को बाउज बोला जाता है, और उसके नीचे एस्ट्रोलॉजर बैठा है, उसके नीचे एस्ट्रोलॉजर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ही सेट, सेट क्या है, यस सेट क्या है, सिट का सेकंड फॉर्म, यानी सिट ही हुआ है। वर्ब्स आता है ना आपको अच्छे से सब, इंग्लिश के बच्चे लोग बेसिक मतलब ग्रामर आना चाहिए, वर्ब्स, एडजेक्टिव, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारी वर्ब्स, एडजेक्टिव, नाउन्स, प्रोनाउंस में भी कंफ्यूजन है अब तक। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताना ताकि हम सॉर्ट आउट कर लें। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रामर वीक है उसका, या तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, या अभी तक उसको समझा नहीं है कि वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसा कोई है इधर पे तो मुझे प्लीज़ येस नो करके बता दो। कोई है तो ऐसा लिखो येस, और लिखो कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो लिख दो, मैं जब तक आगे का पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो किधर बैठा है वो, बाउस के नीचे बैठा है। बाउस मतलब समझ गए, ट्री का वो वाला ब्रांच जिसमें बहुत ज्यादा पत्ते हैं, ठीक है। कौन सा ट्री के नीचे बैठा है, इमली का पेड़। इमली के पेड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टैमरिन ट्री, विच फ्लैंक्ड अ पाथ थ्रू द टाउन हॉल पार्क। और ये ट्री किधर है, मैंने क्या बताई थी, टाउन हॉल पार्क में ये ट्री है, राइट, टाउन हॉल पार्क में ये ट्री है। फ्लैंक मतलब कोने में, ठीक है। अरे बाप रे अच्छा, निकिता, आरिफ, ऋषिराज, आप लोगों को अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, अभी क्या करेंगे हम, मतलब अभी आप सीख लेते हो तो फिर एटलीस्ट आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, वरना फिर आगे प्रॉब्लम आएगी तो बहुत, मतलब एक काम करेंगे,
सिद्धार्थ आपको भी प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए भी सेशंस लाऊं क्या आप लोगों के लिए, मतलब बेसिक्स इंग्लिश, जहाँ पे एटलीस्ट आपको कभी भी ये सब चीज़ में कभी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार समझ गया नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो बात खत्म, एक बार की बात है ना। तो इसको एक बार हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उस पर मैं ज़रूर एक सेशन लाऊंगी, एक स्पेशल सेशन हम रखेंगे, उस पर सीरीज रख सकते हैं, ताकि एक बार आपका माइंड क्लियर हो जाए भाई, फिर उसके बाद कभी सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा, सिद्धार्थ कंफ्यूज नहीं है, ओके। अच्छा, कुणाल का बेसिक क्लियर है, ओके, समझ गया अभी इतना आप लोगों को। फिर क्या होता है, मैंने क्या बताई थी, ये टाउन हॉल पार्क कैसी जगह है, याद आ रहा है कुछ, मैंने कुछ लिखी थी ना पिछले वाली स्लाइड में। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, ये जो टाउन हॉल पार्क है ये एक यूनिक प्लेस है, एक रिमार्केबल प्लेस है, यानी दूसरी जगह से हट के ये जगह है। क्यों भाई, यहाँ पे ऐसा क्या है देखे थे ना हमने, एक तो यहाँ पे सर्जिंग क्राउड है, सर्जिंग क्राउड, ठीक है। सर्जिंग क्राउड मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई भीड़ जो कि हमेशा आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, मतलब चल रहे, आ रहे, जा रहे, दिन भर सुबह से लेके रात तक टाउन हॉल पार्क में भीड़ रहती ही रहती है, लोग आते ही जाते रहते हैं, क्योंकि उधर पे बहुत सारे सेलर्स लोग अपना सामान बेच रहे होते हैं, बिकॉज अ वेराइटी ऑफ ट्रेड्स। ओके, ठीक है, जरूर, अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का बेसिक क्लियर है, ओके। आप लोग लगता है क्वेश्चन उल्टा समझ लिए होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, एक रिवीजन सेशन ला सकते हैं जहाँ पे एक बार हम पढ़ेंगे और बात खत्म कर देंगे, एक बार में एटलीस्ट आपको अगर कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी बेनिफिट मिल रहा है तो उठा ही लेते हैं ना। स्टूडेंट्स लोग को अगर कुछ डाउट है, अगर मैं डाउट क्लियर कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को भी फायदा मिल जाएगा उसका। क्या तक भीड़ रहती है, क्यों भीड़ रहती है भाई, क्योंकि उधर पे बहुत सारे ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना सामान बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन मैंने बताई थी, एक मेडिसिन सेलर है, एक कौन है, स्टोलन हार्डवेयर, ठीक है, चुराया हुआ सामान कोई बेच रहा है, एक मैजिशियन है, याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, याद आ रहा है ना, जैसा हमने चार्ट्स में देखे थे ना, पीडीएफ ट्री डायग्राम। एंड अबाउ ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ, ऑक्शनर का मतलब मैंने क्या बताई थी, ये देखो, इसको बोलते हैं ऑक्शनर, मतलब कि बोली लगा के बेचना, ठीक है। आपके पास एक सामान है और आपके सामने 5 लोग खड़े हैं, पांचों को ये सामान चाहिए, तो आपके पास तो बेनिफिट है ना, आप तो बोली लगाओगे। एक बोलेगा कि 50 रुपया, दूसरा बोलेगा 60 रुपया, तीसरा बोल रहा है मेरे को 80 रुपया, तो सबसे ज्यादा पैसा जो कस्टमर बोलेगा उसको वो चीज मिल जाएगी। तो बोली लगा के क्या कर रहा है, ये कपड़ा बेच रहा है, और ये कपड़ा कैसा चीप है भाई, चीप है मतलब कि बहुत ही लो क्वालिटी का है, लेकिन दिखने में अच्छा है, मतलब कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना एकदम चमचमाते हुए कपड़े हैं, वो सिर्फ सेलर को ही पता है कि उसकी क्वालिटी, सामने वाला कभी पहचान नहीं पाएगा, वो एक बार धुल। यस, जस्ट अ मिनट, सही कर रही हूं। हाँ, यस, मेरी आवाज आ रही होगी, वीडियो लैग हो रही है तो जाने दो, आपको मेरी आवाज आ रही होगी और मेरा वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। यस, ग्रेट। सो मैं क्या बोल रही थी, बहुत सारे सेलर लोग अपना सामान बेच रहे हैं, किधर पे, टाउन हॉल पार्क में एक जगह है उधर पे। तो एक इंसान है जो एक कपड़ा बेच रहा है, उसकी बोली लगा के वो बेच रहा है भाई, और वो कपड़ा ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा कपड़ा है, वो चीप कपड़ा है, सामने वाले को, कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि वो कपड़ा कैसा है, ठीक है। तो याद रखना, हु क्रिएटेड, यस, हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, और पूरे बाजार में, ठीक है, पूरे के पूरे टाउन में जितने भी सेलर लोग हैं उसमें से सबसे ज्यादा पैसा यही कमा लेता है, और दिन भी सबसे ज्यादा यही करता है। दिन यहाँ पे क्या है, दिन का मतलब है नॉइजी, बहुत ही ज्यादा नॉइजी करना, ठीक है, मतलब कि चिल्ला चिल्ला के लोगों को अट्रैक्ट करना। देखो, हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट होल टाउन, पूरे टाउन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही नॉइज करते रहते हैं, ले लो सामान, ले लो सामान, ले लो, ठीक है। मतलब कोई सेलर है, वो आप बोलते हैं ना, ये ले लो, बहुत ही चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। 5 का 3, 5 का 3, 5 का 3 यानी 20 का 7 दे सकते हैं ना। नेक्स्ट टू हिम यानी ये जो हमारा चीप क्लोथ वाला सेलर जो बेच रहा है, उसके बाजू में कौन है, उसके बाजू में उससे भी ज्यादा चिल्लाने वाला एक सेलर है, उससे भी ज्यादा चिल्लाने वाला वेंडर मतलब वही दुकानदार, बेचने वाला, वो क्या है, वॉसिफ्यूरसनेस है, ये तो उससे भी ज्यादा नॉइजी है भाई। वॉसिफ्यूरसनेस कहाँ गया, इसका मीनिंग बीइंग लाउड एंड नॉइजी, ठीक है। एक तो वो चिल्ला ही रहा है, कौन, ऑक्शनर, अपने कपड़े बेच रहा है सस्ते वाले, एड़ा बना के पब्लिक को महंगे में बेच रहा है, और उसके बाजू में दूसरा एक सेलर है जो उससे भी ज्यादा चिल्ला रहा है। क्या बेच रहा है वो, फ्राइड ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली बेच रहा है, भुनी हुई। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, ये जो मूंगफली वाला है ये हर दिन अपने मूंगफली को अलग अलग नाम देता है, ठीक है। कभी कभी बोलता है बॉम्बे आइसक्रीम,
मतलब सोचो, मूंगफली बेच रहा है और आइसक्रीम बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? सही है सेंटेंस। केम अ वेंडर फॉर फ्राइड कोकोनट हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे। ठीक है, अपने अपने दुकान को फैंसी नेम देता है। फैंसी नेम मतलब ट्रेंडी नेम बोल सकते हैं ना, न्यू न्यू नेम बोल सकते हैं। बॉम्बे आइसक्रीम, कभी बॉम्बे आइसक्रीम अपनी दुकान का नाम रखता है, तो कभी दूसरे दिन दिल्ली आलमंड नाम रखता है, तो कभी राजाज डिलीशियस रखता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब ये अपने दुकान का नाम बदलते रहता है, ऐसे ही बताया है बस। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और पीपल जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दुकान में फ्लॉक्ट होते हैं, यानी जाके खरीदते हैं, चिपक जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं मतलब भीड़ भाड़ में लग जाते हैं उसका सामान खरीदने के लिए। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू। अब क्या होता है, इसके ही बाजू में एस्ट्रोलॉजर बैठा है, ठीक है, तो उसका फायदा एस्ट्रोलॉजर को भी मिल जाता है ना। ये फ्राइड कोकोनट वाला की दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, उसके बाजू में एस्ट्रोलॉजर भी बैठा है अपना ठेला लेके, तो इसका बेनिफिट एस्ट्रोलॉजर को भी मिल जाता है ना। आपके बाजू वाली दुकान में बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो 20 कस्टमर बाजू वाली दुकान में आ रहे हैं, तो कम से कम 6-7 लोग तो आपकी दुकान में भी देख के जाएंगे ना। तो वो यहाँ पे है कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, ठीक है। वो वाली क्राउड क्या हो जाती थी, एस्ट्रोलॉजर के पास भी डेलिड हो जाती थी। डेलिड का मतलब है आ जाती थी, मतलब वो सारी क्राउड जो ऐसी घूम रही है और एस्ट्रोलॉजर के पास भी आ गई। मतलब ऐसा होता है ना, हम समझो आप कपड़ा लेने गए थे और कपड़े की दुकान के बाजू में कोई अच्छी दुकान है, तो आप वहां पे भी चले गए, उसको बोलते हैं डेलिड। The astrologer transacted his business by the light of a flare, which crackled and smoked up above the ground heap nearby. यहाँ पे मैंने क्या बोली थी आपको लास्ट सेशन में कि एस्ट्रोलॉजर की दुकान में उसने खुद लाइट नहीं लगाया है, उसके आजू बाजू से लाइट आ जाती है, उससे उसका जुगाड़ हो जाता है। तो यहाँ पे वही बोला है, एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस। एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस चला रहा है। लाइट कहाँ से लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट ऑफ द फ्लेयर। फ्लेयर मतलब जो आग होती है ना, आग ऐसा डंडा रहता है, उसमें से आग जलती रहती है, उसको बोलते हैं फ्लेयर, ठीक है। जो कि क्या कहाँ से आ रही है? ग्राउंड नट वाले के, जो ग्राउंड नट है ना, यही ग्राउंड नट जो चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेच रहा है, उसकी दुकान से लाइट आ रही है और उसी से उसका काम हो रहा है। किसका? एस्ट्रोलॉजर का। उठा देती हूँ उसको जरा। टू अट्रैक्ट पीपल फॉर लाउडली नोस, यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मशाल, यस क्या बात है, मशाल। फ्लेयर को बोलते हैं मशाल। हाँ गया हमारा, हाँ। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। मैंने क्या बोली थी, क्या बताई थी आपको कि इस एरिया में म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं है, स्ट्रीट लाइट जो होती है ना वो है ही नहीं। तो सब दुकान वाले लोग ने अपनी दुकान के बाहर क्या करे है, लाइट लगाए है अलग अलग टाइप की, है ना। बहुत सारे वेंडर्स है, वेंडर्स यानी लोग अपना ठेला लेके खड़े हैं। एक मूंगफली की दुकान थोड़ी होगी, वो एक ठेले लगा के खड़ा होगा, तो ठेले के ऊपर उसने कुछ लाइट लगाया है। कैसी कैसी लाइट लगाया है, चलो एक बार देख लेते हैं। द शॉप प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप्स लाइट, ठीक है। वो जो वहां की जो जगह है वो क्या हो रही है, लिट। लिट क्या है? जैसे सिट का सेकेंड फॉर्म था सेट, वैसे ही लाइट का सेकेंड फॉर्म है लिट, ठीक है। लाइट का फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है लिट। वर्ब 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, जैसे ईट, एट, इटन, है ना, सिट, सेट, सेट, लाइट, लिट, लिट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर वर्ब का क्या नाम है तीनों में, ठीक है। तो टाउन हॉल पार्क में बहुत ही लाइट जल रही है, वहां पे सब शॉप्स वाले लोग ने अपनी खुद की लाइट लगाई है। 1 or 2 हेड हिसिंग गैस लाइट, 1 or 2 हेड हिसिंग गैस लाइट। देखो ये गैस लाइट किधर गया, ये गैस लाइट है, ठीक है, लैंप की तरह। इसको बोलते हैं गैस लाइट, है ना। उसमें वो घास कैरोसिन डालते हैं, घासलेट डालते हैं तो जलती है, ठीक है, गैस लाइट। और क्या है, कुछ कुछ दुकान वालों ने क्या करे है, गैस लाइट जलाए है अपनी शॉप के बाहर। कुछ दुकान वालों ने नेक्ड फ्लेयर जलाए है। नेक्ड फ्लेयर जो कि किधर पे लगा हुआ है, स्टक है ऑन द पोल्स। पोल्स मतलब खंबे में, ये देखो इसको बोलते हैं नेक्ड फ्लेयर। नेक्ड जैसे भी देखो, एक लैंप है, ठीक है, एक लैंप है, कांच है, कांच के अंदर आग डालोगे तो भी लाइट आएगी और वो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि वो आग कपड़े में लगेगा तो कांच आ जाएगी बीच में बचाने के लिए। लेकिन नेक्ड फ्लेयर, फ्लेयर मतलब आग। तो यहाँ पे क्या है, कितने लोग ने डायरेक्ट आग, ठीक है, डायरेक्ट आग ऐसा मशाल की तरह, जैसा किसने बताया था मशाल, यस सिद्धांत। डायरेक्ट मशाल की तरह ऐसा खंबा है और उसमें आग लगी हुई है और सीधा उसको इधर पे पोल में, खंबे में लगा दिया है, ठीक है, कितने लोग ने। और सम वेर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप। देखो पहला क्या है, पहला है गैस लाइट, दूसरा है And 1 or 2 like the astrologer managed without lights of their own. म्हणजे त्यांच्याकडे काही स्वतःची लाईट नव्हती, काय काय दुसऱ्यांचंच हे करून एस्ट्रोलॉजर आणि बाकीची काय 2-4 अशी होती की ते दुसऱ्यांच्याच लाईटी वापरून आपलं आयत्या बिळात मागोबा करायचे. इट वॉज अ bewildering क्रॉस ऑफ लाईट रेज अँड मुव्हिंग शॅडोज.
म्हणजे शॅडोज होत्या तिथं, कारण अंधार मोस्टली झाल्यानंतर कसं सगळ्यांच्या शॅडोज यायला लागतात है ना. आणि बी वाइल्डरिंग होतं, की कन्फ्युजिंग होतं, काय कळायचं नाही कुणाची शॅडो कुशावर येते. गर्दी होती भरपूर आणि रात्र पण असायची भरपूर. रात्री सारखाच माहोल असायचा, कारण तिथं उजेडच नसायचं, कारण तिथं म्युन्सिपल लाइटिंगच नव्हती. दिस सुटेड द ॲस्ट्रोलॉजर व्हेरी वेल, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. म्हणजे का हे त्याला सिक्युरिटी होती, त्याला सिक्युअर होता तो, किंवा त्याचं प्रोफेशन का आतापर्यंत चालू होतं ऍस्ट्रॉलॉजर म्हणून, ढोंगी बाबा. ऍक्च्युली तो ढोंगीच होता, पण ऍक्च्युअली तो काय पण सांगायचा. पण का त्याला सिक्युरिटी होती तिथं, सिक्युरिटी म्हणण्यापेक्षा की त्याचं तिथं चांगलं चालू होतं एकदम मस्त, काय प्रॉब्लेम नाही काय नाही. कारण तो ऍक्च्युली नंतर ऍस्ट्रॉलॉजर बनायचं वगैरे काय ठरवलं नव्हतं. अँड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू अदर्स दॅन ही न्यू व्हॉट वॉज गोइंग टू हॅपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनिट. त्याला पहिली गोष्ट दुसऱ्यांचं काय होणार, म्हणजे आता एक मिनिट त्यांनी काय दिलं माहिती का, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. He knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen टू हिमसेल्फ नेक्स्ट. म्हणजे स्वतःच त्याला काय माहित नव्हतं, दुसऱ्याचं काय सांगणार, असं प्रॉब्लेम होता त्याला. तो नुसता आपल्याला खोटा ढोंगी बाबा होता ऍक्च्युली, पण ती लाईट नव्हती वगैरे, म्हणून लोकांना कळायचंच नाही की हा खराय का खोटाय म्हणून. He was as much a stranger to the stars and as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. तरी पण तो इतका गणवायचा लोकांना, असं वाटायचं की यार खरंच म्हणजे तो खूपच खरं बोलतोय, तो चुकीचं काहीच बोलत नाहीये. दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी, प्रॅक्टिस अँड श्र्यूड गेसवर्क. श्र्यूड म्हणजे काय, गुड ॲट जजिंग पीपल अँड ही वॉज क्लेव्हर. श्र्यूड मीन्स ही वॉज गुड ॲट जजिंग पीपल अँड क्लेव्हर. All the same, it was as much as honest man's labor as any other. म्हणजे इतकं तो खरं बोलायचा, असं वाटायचं की इतका तो गंडवायचा, इतका तो असं खरं बोलायचा. नाही मग ठीक आहे असू दे. इतका तो खरा बोलायचा, इतका तो खरं बोलायचा की असं वाटायचं की खरंच हा म्हणजे सगळं त्याचं जे प्रोफेशन एकदम नोबल प्रोफेशन आहे, आणि हे खरं त्याला सगळं कळतंय, कोणतरी येऊन सांगतंय त्याला कानात, वरचा देवाचा काहीतरी इशारा येतोय असं काहीतरी वाटायचं. ही डिझर्व्ड द वेजेस ही कॅरीड होम ऍट द एंड ऑफ द डे. म्हणून तो ना असं खूप मनापासून सांगायचं, म्हणजे म्हणून त्याला जे पैसे मिळायचे ते त्याच्या कष्टावरती मिळायचे, की ठीक आहे बाबा, म्हणजे तो आपलं काहीतरी गेस वर्क करायचं, आपलं काहीतरी काहीतरी आपलं. पण तो तेवढा क्लेवर होता, तेवढा जम त्याच्या धंद्यात त्याला बसला होता. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. तिथंच राहिलं असतं. त्यांनी काय केलं होतं, त्याची विलेज सोडून दुसऱ्या विलेजमध्ये आला होता आणि तिथं एका वुमेनला मॅरी केलं होतं. आणि मग त्यांनी तिथं स्वतःचं लाईफ हे केलं होतं. मग त्यांनी सोडलं होतं त्याचं विलेज, त्याची फॅमिली वगैरे सगळं. मग कारण त्याच्या मम्मी पप्पांसारखं त्याला काम करायला लागलं असतं. टिलिंग म्हणजे टिलिंग द लँड, टिलिंग म्हणजे प्लोईंग वगैरे, ते जे मेथड्स असतात ना लँड टिलिंग, लिव्हिंग, मॅरिंग आणि रायटनिंग इन हिज कॉर्नफिल्ड अँड अँसेस्ट्रल होम. बट दॅट वॉज नॉट टू बी. त्याला ते नको होतं. ही हॅड टू लिव्ह होम विदाउट टेलिंग एनीवन अँड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील ॲज इफ अन ओशन फ्लोड बिटवीन. म्हणजे ती मजा असते, आणि खूप मोठं चॅलेंज होतं की त्यांनी 100 miles त्याची विलेज क्रॉस केली होती विदाऊट टेकिंग रेस्ट ॲट एनी प्लेस. ही हॅड अ वर्किंग अनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड ट्रबल. वर्किंग अनालिसिस म्हणजे त्याला एक क्लिअर नॉलेज होतं की मॅनकाइंड मध्ये जेव्हा आपण ह्युमन होतोय किंवा ह्युमन म्हणून जन्माला येतो, तेव्हा काय काय स्ट्रगल असतात, मॅरेज, मनी, टँगल्स ऑफ ह्युमन टाईज, फॅमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सगळं टेन्शन, सगळं सगळं काय काय अरेंजमेंट, बॅलन्स ऑफ दी लाईफ, बॅलन्स ऑफ हॅपीनेस अँड सॅड सॅड, असं हे सगळं त्याला ते नको होतं. त्याला असं वाटत होतं की आपण ब्रह्मचारीच होऊया. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड शार्पन हिज परसेप्शन. त्याला लोकांचा अभ्यास चांगला होता, त्याला लोकांचं हे सगळं नीट करायचं. विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. ही चार्ज 3 pies. म्हणजे 5 मिनिटात त्याला लगेच कळतं की ह्या सिच्युएशनला माझ्या कंट्रोल मध्ये मी कसं आणू शकतो, माझ्या कंट्रोलमध्ये कशी येईल, किंवा मला ही सिच्युएशन कशी हँडल करता येईल, हे लगेच त्याला लक्षात यायचं, कारण त्याच्या धंद्यात त्याला खूप चांगला दम होता. ही चार्ज 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes.
त्याची ती ट्रिकच होती. तो ऍस्ट्रॉलॉजर का होता? कारण तो आहे ना दुसऱ्यांना बोलायला लावायचा आणि मग स्वतः त्या काहीतरी गेसवर्क करायचा त्याच्यावरती आणि मग त्याला सांगायचं की तू अशा असशील असं काहीतरी असेल असं काहीतरी नसेल वगैरे वगैरे वगैरे. ही चार्ज 3 पैस पर क्वेश्चन बर का. नेव्हर ओपन हिज माउथ. कधीच 10 मिनिटापर्यंत तो स्वतःचा माउथच ओपन नाही करायचा. विच प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डझन आन्सर्स अँड ऍडवाइसेस. म्हणजे काय, त्याला काहीतरी सांगायचंय, त्याला काहीतरी प्रेडिक्ट करायचंय की तुझं आयुष्य असं आहे, तुझं आता ह्या 10 मिनिटानंतर तू असं काहीतरी करशील. पहिलं त्या माणसाकडनं काढून घ्यायचं की तुला काय करायचंय, काय नाही करायचंय, कसं करायचंय वगैरे बरं का. त्याच्याकडनं इन्फॉर्मेशन घ्यायची. जो माणूस माझ्याकडे, समज आता मी ऍस्ट्रॉलॉजर आहे, मी ज्योतिषी आहे, तर त्याच्यात त्याचं ऐकून घ्यायचं पहिले की बाबा काय आहे, तुला काय पाहिजे, कसं आहे तुझं, सगळं चांगलं चाललंय का, कसं चाललंय आयुष्य. तो आपलं सगळं सांगत असतो. ते सांगितलं की त्यामधनं क्लू घ्यायचे आणि आपण स्वतःचं काहीतरी प्रिडिक्शन सांगायचं की म्हणजे तू मग उद्या, मग तुझा एसएसटीचा पेपर आहे, मग उद्या पेपर तुझा चांगला जाईल कारण तू कॉन्फिडंट आहेस आणि तुझं प्रिपरेशन पण चांगलं झालंय बरोबर, असं काहीतरी मी आपलं काहीतरी माझं मनाचं काहीतरी सांगणार. असं त्याचं काहीतरी होतं की which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told a person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. म्हणजे ऑलमोस्ट त्यांनी जर 10 सेंटेन्सेस सांगितले असतील, त्या ऍस्ट्रॉलॉजरनी असं प्रेडिक्ट केलं असेल की तू चांगला आहेस, तुझं आयुष्य चांगलं आहे, तू खूप कमावणार आहेस, हे करणार ते करणार, असं काय काय प्रेडिक्ट केलं असेल समज. तर त्या जर 10 वाक्य सांगितले असतील तर त्यातली 9 तरी त्याची बरोबर यायची मोस्टली. मग ते और ही क्वेश्चन ओके. तर मग 9 out of 10 वर डिस्पोज टू अग्री विथ हिम. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. Impetuous म्हणजे impulsive, म्हणजे असं रागीट, आणि एक्सटेरियर आणि रफ एक्सटेरियर. दिस एंडियर्ड हिम टू देअर हार्ट इमिडिएटली. एंडियर्ड म्हणजे काय, मेड लाईकेबल. इम्पल्सिव्ह म्हणजे एकदम असं इम्प्रेशन टाकणारं तुझं नेचर आहे, तुझं एक्सटेरियर एकदम भारी आहे, तू एकदम बिल्टअप आहेस, किती छान आहेस, असं काहीतरी एकदम असं काहीतरी फिरवून लावायचं, असं काहीतरी चांगलं बोलायचं की त्या माणसाला आवडेल आणि तो असं त्याला आपल्यावर विश्वास बसेल असं सांगायचं. म्हणजे ते असं वाटेल की मी ज्योतिषी शास्त्री करते. दिस एंडियर्ड हिम. एंडियर्ड म्हणजे काय, मेड हिम मोस्ट लाइकेबल टू देअर हार्ट्स इमिडिएटली. जे यायचे ना त्यांच्याकडे. फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दॅट ही हॅज अ फॉरबिडिंग एक्सटिरियर. ओके. फॉरबिडिंग एक्सटिरियर. फॉरबिडिंग म्हणजे म्हणतात की फॉरबिडिंग म्हणजे काय असतं, फॉरबिडिंग एक्सटिरियर. फॉरबिडिंग म्हणजे अनफ्रेंडली और थ्रेटनिंग इन अपियरन्स. म्हणजे एंडियर्ड हिम टू देअर हार्ट्स फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दॅट ही हॅज अ unfriendly exterior. The nuts vendor blew out his flare and rose to go to home. आता काय होतं, रात्र झाली होती त्यामुळे सगळे घरी चालले होते. नट्स वेंडर सुद्धा ज्याच्या लाईटवरतीच तो तो जो ज्योतिषी आहे तो जगायचा. लयच दरिद्री होता तो ज्योतिषी. तो म्हणायचा की मी माझं पैसे खर्च करणार नाही, मी दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर जगू शकतो, आयत्या बिळात नागोबा. मग तो म्हणायचा की ठीक आहे. मग आता नट्स वेंडर चालला होता त्यामुळे त्याचं पण आता संपलं. तो म्हणला आता काय मला काय ऑप्शन नाही, मला पण जायला लागणार आहे. ज्योतिषी म्हणला, दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रॉलॉजर टू बंडल अप. बंडल अप म्हणजे काय, पॅक करून घरी निघायचं. पवेलियनला, बॅक टू पवेलियन. सिन्स इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाईट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेअर अँड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. काहीतरी ग्रीन लाईट कुठला तरी काहीतरी आला होता. शाफ्ट ऑफ म्हणजे कवर्डचा म्हणजे छोटासा एकदम ग्रीन लाईट आला होता. विच स्टेड इन फ्रॉम समवेअर. कुठून तरी काहीतरी एक लाईट येत होती त्याला, बरोबर. ग्रीन शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाईट. ही पिक्ड अप हिज कावरी शेल्स. कावरी म्हणजे ते तसले शेल्स असतात, ते ह्याच्यात मिळतात बघ, ते शंकरामध्ये किंवा शिवाजी महाराज पण घालायचे ते कावरी शेल्स. म्हणजे त्याला काय म्हणतात मला काय आठवत नाही ऍक्च्युली. ऑइस्टर सारखं असतंय ते. हा, कावरी शेल्स म्हणतात ते. अगदी शिवाजी महाराजांची माळ आहे ना ती तसली व्हाईट कलरची, ते पण तसेच घालायचे. ही पिक्ड अप हिज कावरी शेल्स अँड पॅराफेरनिए पॅराफेरनेलिया म्हणजे अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स युज्ड इन पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी ऑर पर्सनल possession.
a large number of small articles used in particular activity or personal possession and was putting them back into his bag. म्हणजे काहीतरी डॉक्युमेंट्स होते, काहीतरी काहीतरी त्याचं महत्वाचं, काहीतरी ज्योतिषी शास्त्राचं काहीतरी त्याचं त्याचं काहीतरी महत्वाचं काम होतं, काहीतरी पुस्तकं होती 2-4 आणि ते सगळे बॅगेत टाकत होता तो. वेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट वॉज ब्लॉटेड आउट. ब्लॉटेड म्हणजे काय, त्याला ब्लॉक झाले होतं, तर कोणतरी येऊन उभारलं होतं ना त्याच्यासमोर, त्यामुळे मग ते काय झालं, ग्रीन शाफ्ट तो कुठल्याही लाईटीच्या समोर आपण जाऊन उभारलं तर ती ब्लॉक होती ना, आपली शॅडो त्याच्यावर पडती, त्यामुळे मग ती ब्लॉक झाली होती, ब्लॉटेड आउट. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, म्हणजे त्याला असं वाटलं की काहीतरी एक कोणतरी धंदा कराय, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, काय म्हणतात त्याला, आपल्याकडे कोणतरी आपलं हे आलंय, क्लायंट आलंय. क्लायंट म्हणजे कोण, क्लायंट आले, बरं सोड, मला आठवत नाही आता. यू लुक सो केअरवर्न, इट विल डू यू, एक मिनिट, यू लुक सो केअरवर्न, इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर अ व्हाईल अँड चॅट विथ मी. मग तो ऍस्ट्रॉलॉजर म्हणतो की तू ना जरा जास्तच गरजू दिसतोय, मग तू खाली बस, माझ्याशी बोल, मी तुला सांगतो काय होणार आहे काय नाही. The other grumbled some reply vaguely. Okay. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, thrust his palm under his nose, saying, You call yourself an astrologer? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, Yours is a nature. Oh, stop that, the other said. Tell me something worthwhile. Our friend felt picked. Picked means irritated and annoyed or resented. I charged only 3 pies per question, and what you get ought to be good enough for your money. What you get ought to be a good, okay, good enough for your money. तसं नाहीये ते, आपलं साईडवेज म्हणजे ते काय चांगलं चांगल्यासाठी वापरतात, ते काय उगाच काय पण करत नाही, फक्त ते रोजच्या जीवनात वापरतात ते, त्यामुळे त्यांना गेसवर्क येतो. तरीच म्हंटल कसं काय, मला आता कळलं की कशामुळे. ऍट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म. At this, the other withdrew his arm, took out an Anna. At this, the other withdrew his arm, took out an Anna and flung it out to him, saying, तो म्हणतो की हे बघ, आता मी काय करतो, एक आणा देतो तुला. I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that Anna to me with interest. Bluffing म्हणजे तो म्हणतो की मी एक तुला, आपण आहे ना दोघं जण एक चॅलेंज दाखवूया. मी तुला एक अन्ना देतो, तू जर खोटं बोलत असशील ना तर तू मला तो अन्ना परत द्यायचा आहेस. इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव्ह मी 5 रुपीज. मग तो ज्योतिषी म्हणतो की माझा आन्सर जर तुला एकदम परफेक्ट वाटला आणि माझ्यावर विश्वास तुला बसला तर मला तू 5 रुपये द्यायशीस. मग तो म्हणतो की नाही, ऍक्च्युली माझ्याकडे 5 रुपये नाहीच. और विल यू गिव्ह मी 8 आनाज. मग तो म्हणतो की, तो ज्योतिषी म्हणतो मग 8 आना दे रे, एक अन्नाच्या ऐवजी 8 आणे तर दे मला. मग तो म्हणतो ठीक आहे, ऑल राईट, प्रोव्हाइडेड यू गिव्ह मी ट्वाईस ॲज मच इफ यू आर गोईंग, इफ यू आर रॉंग, म्हणजे 16 आणे द्यायचे तुम्हाला जर तू चुकलास तर. ज्योतिषी तू चुकलास तर मला 16 आणे द्यायच्यात, मी तुला 8 आणे देतोय. This pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a chirut. Chirut म्हणजे काय? A cigar. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. म्हणजे त्याला कळालं की हा कसला माणूस आहे, कोण आहे हा वगैरे. There was a pause as cars hooted on the road. जुटका ड्रायव्हर, जुटका म्हणजे काय, हुटेड ऑन दी रोड म्हणजे ते असे अशा त्या गाड्या जातात ना. आणि जुटका ड्रायव्हर म्हणजे हॉर्स ड्रिव्हन कार ड्रायव्हर्स swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. ते एक पार्क होता आणि तिथं डार्कनेस आला होता, ऑलमोस्ट अंधार पडला होता. आणि बॅबल ऑफ द क्राऊड म्हणजे चबड चबड, कुणाचं काय चाललंय तर कुणाचं काय, कोण चालत चाललंय तर कोण पळतंय, कोण काय करतंय, रडतंय, हसतंय, काय 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 चाललंय. द अदर सॅट डाऊन सकिंग हिज चिरूट. चिरूट म्हणजे सिगारेट ओढतोय तो, पफिंग आउट, सॅट देअर रुथलेसली. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी कम्फर्टेबल. त्याला भीती वाटायला लागली होती, आता काय तर गणतंय माझं, कारण हिअर टेक युअर अना बॅग. I am not used to such challenges. It is not for me today. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, You can get up out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint.
लिव्ह मी टुडे, आय विल स्पीक टू यू टुमॉरो. तसं घाबरला होता आणि घाबरत घाबरत काहीतरी बोलत होता की आज मला सोड, उद्या आपण बोलूयात. द अदर थ्रस्ट हिज पाम in his face and said, challenge is challenge. Go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. Stop, said the other. I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go. Otherwise, I will not let you go till you disgorge. Disgorge means yield, surrender under the pressure all your coins. The astrologer muttered a few incantations. Incantation म्हणजे supposedly magical words. असं काहीतरी ओम भीम क्रीम जेम असं काहीतरी करतो. Replied, all right, I will speak. म्हणजे तो म्हणतो की आता आता मी बोलतो, तुला सांगतो ओम भीम 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 असं काहीतरी करतो आणि मग सांगतो की but will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth, and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, "You were left for dead, am I right?" म्हणजे तू मरायला टेकला होतास, बरोबर आहे का? मी तर म्हणतो, टेल मी मोर. बरोबर आहेस तू, एकदम बरोबर आहे. अ नाईफ हॅज पास्ड थ्रू यू वन्स, सेड द astrologer. मग तो म्हणतो, अरे बरोबर आहे की खरं. गुड फेलो, ही bared his chest to show the scar. What else? And you were pushed into a well nearby in the field, you were left for dead. मग तो म्हणतो की तू ऍक्च्युली मरायला टेकला होतास, तुला कोणीतरी चाकूनी वार केला होता आणि चाकूनी वार केल्यानंतर तुला ढकलून दिलं होतं एका विहिरीत. नियर बाय द फील्ड यू वर लेफ्ट फॉर डेड. आय शुड हॅव बीन डेड इफ सम पासर बाय हॅड नॉट चान्स टू पीप इन टू द वेल. म्हणजे आता तो म्हणतो की ऍक्च्युली ना, जर कुणी वाचवलं नसतं ना मला, तर मी आज जिवंतच नसतो, मी मेलोच असतो. एक्सक्लेम दी अदर, ओव्हरवेल्म्ड बाय इंथुझियाझम. तो म्हणतो की अरे तू तर बरोबर बोलतोयस, तू तर बरोबर बोलतोयस. वेन शॅल आय गेट ॲट हिम, ही आस्क्ड, क्लेंचिंग हिज फिस्ट. मग आता ते म्हणतं की तो म्हणतो, तो जो माणूस आलाय त्याच्याकडे, त्या ज्योतिषीकडे, तो म्हणतो की मग मला तो कधी भेटेल, ही आस्क्ड, क्लेंचिंग हिज फिस्ट. इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. तो म्हणतो की मग ज्योतिषी म्हणतो की दुसऱ्या जन्मी, पुढच्या जन्मी तुला तो भेटणार आहे. अँसर्ड दी एस्ट्रोलॉजर. ही डायड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाइम. तो म्हणतो की 4 महिने आधी तो मेलाय. यू विल नेव्हर सी एनी मोर ऑफ हिम. तो म्हणतो की तू कधीच त्याला बघू शकणार नाही या जन्मात, पण पुढच्या जन्मात नक्की तुम्ही दोघं भेटणार आहात. द अदर ग्रोन्ड ऑन हिअरिंग इट. ग्रोन्ड म्हणजे काय? मेड अ लो साऊंड ऑफ डिसेप्ट. नाहीतर मी त्याला खोपच्यातच घेऊन मारला असं असं त्याच्या मनात चाललं होतं. त्यामुळे तो म्हणतो की अर हातातनच गेला. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसिडेड. गुरु नायक. मग तो म्हणतो की यू नो माय नेम. मग आता तो म्हणतो की ए तुला माझं नाव पण माहिती आहे. एवढं सगळं कसं काय माहिती? द अदर सेड टेकन अ बॅक. म्हणते की मला तुझं म्हणजे तुला कसं माहिती माझं नाव? गुरु नायक माझं नाव आहे. हो माझं नाव आहे ते. ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक, लिसन केअरफुली टू व्हॉट आय हॅव टू से. Your village is 2 days' journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. Recording certain. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will live to be 100. Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life. I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. Gratified म्हणजे pleased आणि satisfied की हा ह्यांनी मला मारायचा प्रयत्न केला होता, मेला एकदाचा गेला. The place was deserted by the time the astrologer picked up his आर्टिकल्स अँड पुट देम इन टू हिज बॅग. म्हणजे आता काय झालं होतं, सगळी गर्दी संपली होती, सगळे त्यांच्या त्यांच्या घरी गेले होते, रात्र झाली होती आणि मग ॲस्ट्रोलॉजर म्हणलं आता चला आता हं खूप बॅगमध्ये भरूया आणि जाऊया घरी. द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन. ते सुद्धा गेलं होतं, त्याची लाईट, शॅटर ऑफ लाईट जो पडत होता. लिव्हिंग द प्लेस इन डार्कनेस अँड सायलेन्स. द स्ट्रेंजर हॅड गॉन ऑफ इन टू द नाईट. म्हणजे तो आपला धुंदीत गेला होता. आफ्टर गिव्हिंग द ॲस्ट्रोलॉजर अ हँडफुल ऑफ कॉइन्स. गॉन ऑफ इंटू म्हणजे तो गेला तो नंतर त्याला सोडून. इट वॉज नियरली मिड नाईट वेन द astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, count them. One man gave all that.
12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. ओके, म्हणजे आता तो म्हणतो की अरे त्या भावळटनी तर मला गंडवलं, मला 1 रुपये देणार होता मी बोललो म्हणून. शी लुक्ड अप ॲट हिम. आणि त्याची बायको म्हणते काय बडबडताय तुम्ही, यू लुक वरीड, व्हॉट इज रॉंग. तो म्हणतो की नथिंग. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्युअल, प्युअल म्हणजे अ स्ट्रिंग कॉट, ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे. म्हणजे त्याला वाटतं की अरे आज ना माझं ना आयुष्य एकदम सुंदर झालंय, माझं सगळं टेन्शन निघून गेलंय. आय थॉट आय हॅड द ब्लड ऑफ अ मॅन ऑन माय हँड्स ऑल दिस इयर्स. म्हणजे ऍक्च्युली माझ्यावरती एकाचं पाप होतं, ते म्हणजे की म्हणजे त्याला माझ्याकडून मी त्याला मारायचा प्रयत्न केला होता. दॅट वॉज द रिझन वाय आय रॅन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हिअर अँड मॅरिड यू. ही इज अलाइव्ह. ही इज अलाइव्ह. ही खूप मोठी गोष्ट आहे की माझ्याकडून तो मरणार होता पण तो आज जिवंत आहे. शी गास्प्ड. यू ट्राय टू किल हिम. ती म्हणतो येस, इन आर विलेज व्हेन आय वॉज अ सिली यंगस्टर वी ड्रँक, गॅम्बल्ड अँड quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning, and stretched himself on pure. असं झालं आमचं सगळं. पहिल्या लेसन झालं. भारी आहे बनाले यार. ठीक आहे, थँक्यू. किती झालंय? 1 तास 1 मिनिट 24 सेकंद.